student, welcome to my video session. Today we will discuss marginal costing, some important questions. In last class हम लोग बहुत दो चार तो क्वेश्चंस किए थे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस किए थे. आज थोड़ा अलग है. हर क्वेश्चंस को आप देखिए, सब क्वेश्चन अलग अलग है और मैं बार बार बोलता हूं, आपको जैसा इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस में होगा उसके हिसाब से आप फॉर्मूला यूज करके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आप लोग को करना है. तो अभी आपका स्क्रीन में एक क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5. अब इस चीज में क्या डिफरेंट है ये थोड़ा देखिए. द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट पर यूनिट इज एज फॉलोज. डायरेक्ट मटेरियल ₹5, डायरेक्ट वेज ₹4, प्रोडक्शन ओवरहेड 40% फिक्स्ड. Production overhead 40% fixed means 60% is variable. 60% is variable, that is ₹5. Then administration overhead is totally fixed. There is no questions of variables. Expenses, that is ₹1. And output is 1 lakh unit. Selling price per unit is ₹20. Find out the break-even point. Find out the break-even point. हमको निकालने के लिए क्या बोल रहा है? break-even point निकालने के लिए बोल रहा है. तो आप लोग का break-even point जो है, फॉर्मूला क्या है? इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? प्लीज राइट डाउन. मैं बता रहा हूं. सबसे पहले क्वेश्चंस में देखिए, फिक्स्ड ओवरहेड. फिक्स्ड ओवरहेड कितना दिया है? फिक्स्ड ओवरहेड सबसे पहले आपको निकालना है. फिक्स्ड ओवरहेड सबसे पहले क्या निकालना है? फिक्स्ड ओवरहेड इज इक्वल टू फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड प्लस फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड. फिक्स्ड ओवरहेड इज इक्वल टू फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड प्लस फिक्स्ड administration overhead. Clear my point? First we will find out fixed production overhead, then we will find out fixed administration overhead. Fixed production overhead says that 40% of ₹5, 40% of ₹5. अब देखिए कितना होगा. This comes to ₹2. और क्वेश्चन में दिया है फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ₹1. टोटल कम्स टू ₹3. ₹2 plus ₹1. This comes to ₹3. ₹3 is your total fixed overhead. अगर आउटपुट total fixed overhead is equal to 1 लाख यूनिट. एक यूनिट का फिक्स कितना है? ₹3. तो 1 लाख के ऊपर में कितना होगा? 1 lakh unit multiply into 3. This comes to your 3 lakh. This comes to your ₹3 lakhs. So your fixed overhead is ₹3 lakhs. This is the first point. First you will find out fixed cost, then you will find out the variable cost.
वेरिएबल कॉस्ट कितना है? वेरिएबल ओवरहेड इज इक्वल टू कितना परसेंट? अगर 40% फिक्स्ड है, इट मींस दैट 60% इज वेरिएबल. So 60% of rupees 5. This comes to rupees 3. 60% of rupees 5, that is 3 rupees. Total variable cost 1 lakh unit. 1 lakh unit multiplied to rupees 3. This comes to 3 lakhs. This is also 3 lakhs. Your variable cost is also 3 lakhs. First, find out the information. Then you will find everything. Then second step is your contribution. Contribution per unit. Contribution per unit. Contribution is equal to selling price minus variable cost. Selling price minus variable overhead. So selling price is how much? That is given in the question. Selling price is rupees 20. Selling price is rupees 20 minus variable rupees 3. This comes to your 17 rupees. कितना? Contribution is your 17 rupees. और कुछ है क्या? प्रोडक्शन. अच्छा, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट वेज इज आल्सो वेरिएबल. सॉरी, ये थोड़ा यहाँ एक तो चीज निकालना पड़ेगा. टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस. टोटल वेरिएबल मीन्स योर material is always variable in nature. Then comes to your direct wage. Direct wage is also variable. Direct wage plus direct expenses. Direct material price is rupees 5. Direct material is 5 plus direct labor is 4 rupees plus 3 rupees. This comes to 12 rupees. So total variable cost is rupees 12. Clear my point? Then the contribution C is equal to S minus V is equal to 20 minus 12. This comes to 8 rupees. Clear my point? Sales minus variable cost is equal to your contribution. So contribution is rupees 8. After calculation of this much, you will find out. Please write down everything clearly. Okay? Then you will find out the break-even point. You will find sometime everything is given in the question, and sometime you will get certain hidden information also. Clear my point? If hidden information is there, then you will have to first find out the hidden information. Then you will calculate the break-even point. Then break-even point is equal to BP is equal to, please write down, there are different methods of calculation of break-even point, but here fixed overhead divided by contribution.
फिक्स्ड ओवरहेड, आपको मालूम है बीईपी इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन. सो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मींस S माइनस बी, S माइनस बी, जो कि हम लोग निकाल चुके हैं. क्लियर माय पॉइंट. फिक्स्ड कॉस्ट भी निकाल चुके हैं. F इज इक्वल टू 3 लाख हम लोग पहले से निकाल चुके हैं. FC इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन कितना निकाले हैं ₹8. क्लियर माय पॉइंट. देन 3 लाख डिवाइडेड बाय ₹8. ₹8 3 लाख डिवाइडेड बाय ₹8 इज इक्वल टू कितना होगा निकालिए. 3 लाख डिवाइडेड बाय 8 37,500 यूनिट. आप जब पर यूनिट में डिवाइड करते हैं देन योर आंसर विल बी इन यूनिट. रिमेंबर दिस थिंग. क्लियर माय पॉइंट. बट इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस थिंग इनटू योर अमाउंट देन व्हाट यू विल हैव टू डू. योर टोटल यूनिट आउटपुट कितना निकाले 37,500 यूनिट. पर यूनिट सेलिंग प्राइस इज ₹20. पर यूनिट सेलिंग प्राइस इज ₹20. then this comes to 7,50,000. this comes to ₹7,50,000. so this is in unit, this is in amount. You will find out in unit also or directly you will find out in amount also. इसको अगर हम करना चाहेंगे अमाउंट में तो भी अमाउंट में होगा. क्लियर माय पॉइंट. so first you will find out in unit then convert it into your amount. so this is the calculation of break even point according to questions number 5. then please write down the question number 6. Please write down question number 6. This is related to your margin of safety. Calculate margin of safety in each of the following cases. First question is profit 2,400, contribution is ₹6. Break even sales 1,600 unit, actual sales 2,000 unit. Profit 2,400, P by V ratio given 60%. Break even sales 30%, actual sales 20,000. Profit 4,800, total contribution is 19,200. Break even sales 70%, only break even sales is given 70%. G year 1, year 2, year 1 total sale 20, year 2 total sale 30,000. Then total profit in year 1 2,400 and in the year second year it comes to 8,400. Clear my point? This is the questions. So margin of safety means actual sale minus sell at break even point. Clear my point? If your sale is more than break even point, then that is called margin of safety. अब ये क्वेश्चंस को देखिए, हर क्वेश्चन एक दूसरे से अलग है, क्योंकि ये जो मैं दिया हूं जितना क्वेश्चन इसी का रिलेटेड क्वेश्चन ही होता है, तो आपको कैसे निकालना है वो चीज समझ में आना चाहिए। मैं इसीलिए बेसिक क्वेश्चंस दिया हूं, आप पूरा चैप्टर को समझ पाएंगे। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इन फर्स्ट केस प्रॉफिट 2,400, contribution ₹6.
Question number 1 that is given. Question number 1 that is given. Profit 2,400. Profit 2,400 rupees. Profit 2,400 rupees. And contribution per unit is given. Contribution per unit rupees 6. Contribution per unit rupees 6. इतना ही दिया है। इसमें से आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। आपका एक फॉर्मूला है, देखिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी is equal to margin. According to question you will put your formula. So margin of safety is equal to profit divided by contribution per unit. Profit divided by contribution per unit. Profit divided by contribution per unit. Profit is given, that is rupees 2,400 divided by contribution per unit, that is given rupees 6. That is given. So this comes to 400 unit. This comes to your 400 unit. Clear my point? ये था क्वेश्चन नंबर 1. Then comes to question number 2. Then comes to questions number 2. Question number 2 says that break-even sale 1600 unit. Break-even sale 1600 unit. Break-even sale is given 1600 unit. And actual sale is given. Actual sale 2000. Actual sale is given 2000 unit. दोनों यूनिट में है। अगर दोनों यूनिट में होगा तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक यूनिट में होगा और एक अमाउंट में होगा तो आपको मल्टीप्लाई करके अमाउंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ दोनों यूनिट में है तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका फॉर्मूला क्या बोलता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज यू नो that is actual sale in unit minus actual sale in unit minus break even sale in unit, break even sale in unit. So actual sale is given 2000 unit minus 1600 unit is equal to 400 unit. 400 unit. ये तो क्वेश्चन है, सीधा पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। क्लियर माय पॉइंट? लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा देखिए, ये थोड़ा सा अलग है। ये भी सिंपल है लेकिन थोड़ा सा अलग है। अब जितना फॉर्मूला में लिखवाया था टोटल को यूज करके मैं क्वेश्चंस बनाया हूं, तो इसीलिए ये समझना जरूरी है ताकि आप किताब का क्वेश्चंस कर पाए। तीसरा है प्रॉफिट 2400, प्रॉफिट 2400 रुपीस, प्रॉफिट रुपीस 2400 and the P by V ratio, P by V ratio
इज इक्वल टू 60%, P by V रेशियो इज इक्वल टू 60%। कभी कभी क्वेश्चंस में P by V रेशियो निकालने के लिए भी बोलता है, जो कि हम पहले कर चुके हैं, हाउ टू कैलकुलेट P by V रेशियो। क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन आपके पास दिया रहेगा, आप P by V रेशियो निकालोगे और उसमें से आप निकाल सकते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्लियर है पॉइंट? इतना जब दिया है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय P by V रेशियो। आप पहले लिखे हो देखो, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय P by V रेशियो। प्रॉफिट इज गिवन 2400 rupees and the P by V ratio is given, that is 60%, 60 by 100, 60% means 60 by 100। इसको आप सॉल्व करो, ₹2400 divided by 60 into 100, 60 into 100 कितना यूनिट आ रहा है? देखो आप 4000 यूनिट आ रहा है। कितना यूनिट आएगा? 4000 यूनिट। दिस इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इतना अगर प्रोडक्शन करता है तो कंपनी के लिए कुछ भी खतरा नहीं है, ये आराम से कंपनी आगे चल सकती। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर डी। ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन जो है अलग है। क्वेश्चन नंबर डी को आप देखिए। क्वेश्चन नंबर डी बोल रहा है ब्रेक इवन सेल्स 30%, ब्रेक इवन सेल 30%। ये जो परसेंटेज बोलता है ना, ये परसेंटेज ऑफ सेल है, याद रखना। ब्रेक इवन सेल का मतलब 30% जो बोल रहा है, 30% किसके ऊपर है? सेल्स के। ये हर टाइम जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं ये सेल्स के ऊपर में ही होता है। एक्चुअल सेल इज गिवन 20,000, एक्चुअल सेल 20,000। अब लोग लिख लो, ब्रेक इवन सेल्स 30%, एक्चुअल सेल 20,000। क्लियर? अच्छा, अब आपको मालूम है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू एक्चुअल सेल माइनस सेल एट ब्रेक इवन पॉइंट। सेल एट ब्रेक इवन पॉइंट, एक्चुअल सेल माइनस सेल एट ब्रेक इवन पॉइंट। तो एक्चुअल सेल आपको दिया है, एक्चुअल सेल इज 20,000 माइनस ब्रेक इवन सेल कितना परसेंट होगा? 30% ऑफ सेल 20,000, 30% ऑफ सेल दैट इज कम्स टू 20,000। तो ये कितना आएगा आपका? 6,000। कितना आएगा? 20,000 30%, 6,000। क्लियर है पॉइंट? 6,000 क्या चीज आया? सेल एट ब्रेक इवन पॉइंट। 6,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 12 में से 20 में से 6,000 चला गया 14,000। दिस इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सो 14,000 इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्लियर है पॉइंट? हर चीज अलग अलग है। देखिए हर क्वेश्चन अलग अलग है, हर चीज निकालने का तरीका भी अलग अलग है, हर किसी का फॉर्मूला भी अलग अलग है। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन नंबर ई। प्रॉफिट 4,800,
टोटल कंट्रीब्यूशन, देखिए पहला क्वेश्चन में था कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था 6 रुपया, अभी क्वेश्चन बोल रहा है टोटल कंट्रीब्यूशन अमाउंट में 19,200, प्रॉफिट भी अमाउंट में, कभी अमाउंट में होता है कभी परसेंटेज में होता है, क्वेश्चन जैसा ही बोलता होगा उस हिसाब से हमको आंसर निकालना। तो देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है प्रॉफिट 4,800, टोटल कंट्रीब्यूशन 19,200। तो आप खुद ही इसमें से सीधा लिख सकते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। यहाँ पर यूनिट नहीं होगा, so profit is given, that is 4,800, profit is given 4,800 divided by contribution is given 19,200, 19,200, so this comes to your 25%. You will multiply into 100. This will comes to 25%. So 25% what? 25% of sales. So your margin of safety is 25% of sales. Clear my point? ये एक निकालने का तरीका है। Then you will calculate the margin of safety in question number G नंबर क्वेश्चन देखिए, जी नंबर क्वेश्चन, ये 25% किसके ऊपर में है ये भी बता देता हूं। लेट टोटल सेल assume 100%, टोटल सेल assume कितना परसेंट है 100%। अगर 100% होगा तो ये क्या होगा, तो हम यहाँ एक्चुअल सेल माइनस सेल एट ब्रेक इवन पॉइंट, सेल एट विच पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, किसका 25% ऑफ व्हाट, 25%, then you will get 75%. This is your margin of safety. ये भी निकाल सकते हैं, एक्चुअल सेल माइनस सेल एट ब्रेक इवन पॉइंट। अब देखो सबसे इंटरेस्टिंग है जी जो है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब थोड़ा इसको ध्यान से देख लीजिए। जी बोल रहा है कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर टोटल सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस सेल्स, अभी टाइम आउट होने जा रहा है, अगर समझ नहीं पाएंगे तो फिर मैं इसको वीडियो करके भेज दूंगा। टोटल सेल 20,000 लेस प्रॉफिट कितना है 2,400 इज इक्वल टू योर कॉस्ट 17,600। दिस इज योर कॉस्ट, सेल्स माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट। सेकंड का भी ऐसे ही है 30,000 माइनस प्रॉफिट कितना है 8,400। दिस कम्स टू 600 एंड so 21,600 इज योर कॉस्ट। क्लियर माय पॉइंट। इतना निकालने के बाद इसमें सबसे पहले इस क्वेश्चंस में आपको निकालना पड़ेगा P/V रेशियो। क्या निकालना पड़ेगा P/V रेशियो, क्योंकि यहाँ 2 है 1 2, so P/V रेशियो इज इक्वल टू
चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। चेंज इन सेल्स आप लोग को मालूम है, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई इनटू 100, मल्टीप्लाई इनटू 100। ये आप लोग लिखे हैं इक्वेशन में, आप देखिए जब दो रहता है, दो साल का कंपैरिजन होता है, तो यहां निकालते हैं चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स। चेंज इन प्रॉफिट कितना है? चेंज इन प्रॉफिट जो है 8,400 माइनस 2,400। चेंज इन सेल्स कितना है? 30,000 माइनस 20,000, 30,000 माइनस 20,000। चेंज इन प्रॉफिट चेंज इन सेल्स। तो ये इनटू 100 करिए, अगर इनटू 100 करते हैं तो दिस कम्स टू हाउ मेनी परसेंट? आप निकालिए, आपको मिलेगा दिस कम्स टू 60%। कितना मिलेगा? 60%। So your P by V ratio is 60%. So your duty is to first calculate the P by V ratio. After calculation of P by V ratio, here you see total cost is given. Total cost मतलब फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। हमको पता नहीं है कितना फिक्स्ड कॉस्ट और कितना वेरिएबल कॉस्ट, तो इसीलिए सबसे पहले आप फिक्स्ड कॉस्ट को निकालिए। तो राइट डाउन फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। हम लोग देखिएगा फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। तो कंट्रीब्यूशन कितना है? फिर कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट निकाले? अभी कंट्रीब्यूशन है हम लोग का 60%। सो 60% ऑफ व्हाट? 60% ऑफ सेल्स। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये सेल्स के ऊपर में निकालते हैं, तो 60% ऑफ सेल्स 20,000। तो कितना आएगा? ये आएगा ₹12,000। ये आएगा ₹12,000। क्लियर? उसके बाद आप प्रॉफिट निकालिए। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या है? कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट बोल रहा है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू योर प्रॉफिट। नहीं क्या? प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना दिया है? 20,000, 2,400। प्रॉफिट कितना दिया है? तो कंट्रीब्यूशन 12,000 माइनस प्रॉफिट दिया है 2,400। 12,000 माइनस 2,400 जितना होगा। उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन कितना है? 60% ऑफ सेल्स है। फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन 60% ऑफ कितना है? सेल्स 20,000। 20,000 6 गुना 12 कितना हजार होगा? ये टोटल होगा आपका 12,000। क्लियर? 12,000 माइनस 2,400। 12,000 माइनस 2,400, ये जितना भी निकलेगा दैट इज योर फिक्स्ड कॉस्ट। निकालेंगे 12,000 माइनस कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन इज योर 12,000 माइनस प्रॉफिट इज 2,400। then you will get
the fixed cost. That fixed cost, that is your 9,600. This comes to 9,600 rupees 9,600. क्लियर है पॉइंट? एफ मिल गया। उसके बाद आपको निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट। क्या निकालेंगे? सबसे पहले आप निकालो इसको। ऐसा अगर क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा P by V रेशियो। P by V रेशियो के बाद देखिए हमको दिया है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मतलब क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। इसमें फिक्स्ड कॉस्ट भी है, वेरिएबल कॉस्ट भी है। इसमें फिक्स्ड कॉस्ट भी है, वेरिएबल कॉस्ट भी है। अगर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट दोनों है तो आपको पहले कोई भी एक निकालना पड़ेगा। तो आपको फिक्स्ड कॉस्ट निकाल देना है। फिक्स्ड कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट जब करेंगे, पहले से आप कंट्रीब्यूशन P by V रेशियो में निकाल चुके हैं, तो उसमें 60% बोल रहे हैं। 60% लीजिए। 60% ऑफ व्हाट? मैं हर टाइम बोलता हूं ये सेल्स के ऊपर में ही निकाला जाता है। जितना भी आप परसेंटेज बोलते हैं, ये टोटल परसेंटेज जो है ये सेल्स के ऊपर में ही हम लोग निकालते हैं। तो 20,000 का 60% 9,600 फिक्स कितना निकल गया? इतना निकलने के बाद आपको निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट। क्या निकालना है? ब्रेक इवन पॉइंट। ये ब्रेक इवन पॉइंट आप कैसे निकालें? ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू, एज यू नो, VP इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन बाय P by V रेशियो। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय P by V रेशियो। और फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय P by V, क्योंकि हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट निकाल चुके हैं तो आपको ये सीधा डायरेक्ट लेना है। VP इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय P by V रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन हम लोग के हाथ में ऑलरेडी है, इसीलिए हम VP इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय P by V रेशियो करें। P by V रेशियो भी हम लोग के हाथ में है। तो F कितना है? फिक्स्ड कॉस्ट निकाले हैं 9,600। P by V रेशियो 60% means 60/100 is equal to 9,600 into 100/60 इसमें से आपका निकल जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। दिस इज कम्स टू 16,000। कितना आएगा? 16,000 यूनिट। 16,000 यूनिट। So your break even point is 16,000 unit. So break even point निकालने के बाद you will calculate the margin of safety. Then you will calculate margin of safety. Margin of safety, actual sale minus sale at break even point. Actual sale minus sale at break even point. So suppose here it is says that 20,000 minus 16,000. 60,000. Actual sale 20,000 minus 16,000 comes to 4,000. comes to your 4,000. ये यूनिट में है, सारा यूनिट में। ये भी यूनिट में है, ये भी यूनिट में। हम लोग के हाथ में सारा इंफॉर्मेशन है। ये कैसे एक्चुअल सेल में कैसे निकाला? एक्चुअल सेल देखिए, एक्चुअल सेल इज इक्वल टू हम लोग 60% इज इक्वल टू कितना निकाले? 16,000। 60% इज इक्वल टू 16,000। 100% इज इक्वल टू 16,000
डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100, 60 इंटू 100। अब करिए, देखिए कितना आ रहा है। ये परसेंटेज में आएगा 100%। क्लियर है पॉइंट? तो कितना आएगा? 20,000। तो उस हिसाब से मैं यहाँ 20,000 दिया। तो आज के डेट में इतना ही करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन में सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और अगर कहीं पे भी आप लोगों का किसी तरह का भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि मैं आप लोगों को दोबारा समझा पाऊंगा। धन्यवाद।